Hello students, we are doing rank and nullity. Students, last time we discussed Sylvester law. Today we will discuss some problems based on Sylvester law. For a linear transformation T r square to r cube such that transformation of x1 x2 is mapped to x1 minus x2 x2 minus x1 minus x1. Find basis and dimension of its range space and its null space. Also verify that rank of T means dimension of range space plus nullity of T, nullity means dimension of null space, is equal to dimension of R square. This is vector space R square. So this is रैंक नलिटी थ्योरम और यू कैन से सिल्वेस्टर लॉ, जिसमें हमने प्रूव करना है कि आपकी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यू वेयर टी इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी. क्लियर? सो लेट अस फर्स्ट फाइंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस में कौन से एलिमेंट्स हैं? All those vectors of u, vector space u such that t transformation of u is 0. Clear? 0 of v. So आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन u का वेक्टर होगा वो r स्क्वायर से आएगा और v का 0 r क्यूब में से. So let us by definition null space nt is equal to u belongs to r square such that t of u is equal to 0, 0 of r cube. So let us take some element u which is equal to x1 comma x2 from R square with the element of null space of t. So such that t of u is 0. T of u 0 implies t transformation of x1 x2 0. And what is transformation? Transformation is given to you. Transformation of x1 x2 is mapped to x1 minus x2, x2 minus x1 and minus x1. So what we get? We get x1 minus x2, x2 minus x1 minus x1 is equal to 0 of v. 0 of v यहाँ पे क्या है? r cube. r cube क्या आ गया? 0 0 0. So this implies these two vectors are equal whenever x1 minus x2 is equal to 0. So ये 0 आ जाएगा, x2 minus x1 is 0 and minus x1 is 0. So from these equation we get x1 0 and x2 0. So there is only one element in null space which is 0 element. So dimension of nullity is 0. Now we find dimension of range space. अब आपके पास according to Sylvester law dimension of range space plus dimension of आपके पास dimension of nullity किसके equal होनी चाहिए? dimension of vector space u where t is transformation from u to v. तो यहाँ पे u r square है. It means dimension of range space क्या आएगी? 2 बिकॉज नलिटी की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास? 0. सो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया. ठीक है. सो रेंज स्पेस कंसिस्ट ऑफ x1 माइनस x2. टी ऑफ x रेंज स्पेस में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस. आर टी कंटेन्स ऑल दोज वेक्टर टी यू टाइप के एलिमेंट्स वेयर यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस यू. क्लियर? सो यहाँ पे टी यू आपके पास क्या है? टी ऑफ x1 कॉमा x2 वेर x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर. ठीक है. सो टी ऑफ x1 x2 किसके इक्वल है? x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 माइनस x1 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x1. क्लियर? So let v belongs to Rt. Thus there exists a vector u from R square such that t of u is equal to v. So this is the definition of range space. So आप एक वेक्टर, अब रेंज स्पेस को हमने रेंज स्पेस की बेसिस निकालनी है क्योंकि डायमेंशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है? बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे रेंज स्पेस की दैट वुड गिव यू द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस. बट डायमेंशन के लिए बेसिस निकालनी है और बेसिस की 2 कंडीशन होती है. एक तो ये कि हमें वो वेक्टर्स पता होने चाहिए जो बेसिस में है, वो वेक्टर्स क्या करेंगे? जनरेट करेंगे रेंज स्पेस को, और दूसरा वो वेक्टर्स li होंगे. सो लेट अस चेक कि कौन से वेक्टर आपका रेंज स्पेस जनरेट कर रहे हैं, फिर हम उनको li प्रूव करेंगे. सो let us start from x1 x2 which belongs to r square. They can be written as x1 times e1 बेसिस के एलिमेंट ले लिए एंड x2 टाइम्स e2. हमें पता है r स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस होती है e1 e2. ठीक है. सो हमने
किसी भी एलिमेंट जो आर स्क्वायर में कोई भी एलिमेंट है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. सो दीज आर दी स्केलर वेक्टर्स x1 x2. सो x1 टाइम्स आपके पास e1, x2 टाइम्स e2. टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड. सो t ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 आउटसाइड t ऑफ e1 plus x2 outside t of e2. So t of e1 and t of e2 we can find because हमारे पास t of x1 x2 given है. तो x1 की जगह आप रखोगे 1 और x2 की जगह रखोगे 0. So t of e1 is 1 minus 1 minus 1 and t of e2 is minus 1 1 0. ये कैसे निकाला? x1 की जगह 1, so it is x1 minus x2, x2 is 0 and here it is x2 minus x1, here it is 0 minus 1, here it is minus x1, so it is minus 1. इसी तरह यहाँ पे x1 minus x2, x1 is 0, x2 is minus 1, x2 minus x1, here it is minus x1. So we get t of e1 and t of e2. Now substituting t of e1 and t of e2, we get t of x1 x2 can be written as x1 times some vector plus x2 times some vector. So आपके पास ये x1 t of x1 x2 क्या है? v, element of range space. So element of range space can be written as x1 times some vector plus x2 times some vector. So it is linear combination of vectors 1 minus 1 minus 1 and minus 1 1 and 0. So this can be written as linear combination of these two vectors. So it means that they generate range space. So V belongs to RT and it is spanned by vectors 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 0. So they are the two vectors जो किसको जनरेट कर रहे हैं? रेंज स्पेस को. और हम चेक कर लेते हैं अगर ये आपके पास एल आई हैं देन दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस. सो लेट अस चेक वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. सो लेट अस टेक a टाइम्स this v1 plus b times v2 is equal to 0. Linear combination is 0. Now it is a minus b, b minus a. इनको आपने कैलकुलेट किया. Minus a is equal to 0 0 0. So here we have a minus b 0. Comparing b minus a 0 and here minus a 0. So what we get? We get a 0 and b 0. So therefore these two vectors are linearly independent vectors. Hence they form the basis of our space, our range space. तो अगर आपके पास रेंज स्पेस की बेसिस आपके पास आ गई है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन? डायमेंशन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. सो डायमेंशन ऑफ आर टी इज 2 एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज ऑल्सो 2. सो वी हैव वेरीफाइड द थ्योरम दैट रैंक ऑफ टी मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस nullity of T means dimension of null space is equal to 2, which is equal to dimension of vector space U, that is R square. So this is question 1. Next, find the linear transformation T from R cube to R cube whose range space is generated by spanned or generated is same spanned by the vectors 1 2 3 4 5 6. So हमने यहाँ पे निकालनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका रेंज स्पेस किससे जनरेट हो रहा है? बाय दी वेक्टर्स. ठीक है. सो अब यहाँ हम फिर से स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ u से. u यहाँ पे क्या है? आर क्यूब. सो यहाँ इसकी बेसिस लेंगे. सो यहाँ पे बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे क्योंकि इसकी बेसिस गिवन नहीं है. सो e1 e2 e3 आर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब. So we have a linear transformation T. Let we have a linear transformation T such that क्योंकि रेंज स्पेस इससे जनरेट हो रहा है तो T ऑफ E1 कहाँ मैप हो जाएगा? T1 0 0 इज मैप टू 1 2 3. इस पे लेट हमने ये कर लिया. ठीक है. हमने लेट कर लिया कि T ऑफ E2 इज मैप टू 4 5 6. अब T ऑफ E3 कहाँ मैप करेगा? V के कौन से वेक्टर पे मैप करेगा? रेंज स्पेस जो है दैट इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. ठीक है. इफ T इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, सो V में एक ऐसा वेक्टर जो हमें पता है कि होगा ही होगा दैट इज 0. सो लेट अस टेक दैट T ऑफ E3 इज मैप टू 0 वेक्टर ऑफ V. सो नाउ वी हैव T ऑफ E1 E2 एंड E3. So the range space is spanned by T of E1, T of E2 and T of E3. So let us now write x1, x2, x3 can be written as linear combination of these bases. So उसके basis में जो आपके पास elements हैं that are E1, E2, E3. So it can be written as x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3. Similarly,
जैसे हमने ऊपर किया है टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, प्रीवियस क्वेश्चन में, ऊपर मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. ट्रांसफॉर्मेशन t बोथ साइड वी हैव x1 into t of e1, x2 into t of e2, x3 into t of e3. So what we have, t of e1 is 1 2 3, t of e2 is 4 5 6 and t of e3 we have taken it as 0. So we will get this transformation. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट आ सकती है, आंसर डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज अगर आप टी ऑफ ई टू को 0 पे मैप करा लो और टी ऑफ ई थ्री को मैप करवा लो आप 4 5 6 पे, तो आंसर वुड बी डिफरेंट. इसी तरह ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप टी ऑफ ई वन को भी 0 पे मैप करवा सकते हो. सो इट इज़ अप टू यू. अगर आप टी ऑफ ई वन को 0 पे मैप करवाओगे और टी ऑफ ई टू को करवाओगे 1 2 3 पर, टी ऑफ ई थ्री को करवाओगे 4 5 6 पे, देन आंसर वुड बी डिफरेंट. तो इस केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट आ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R4 to R क्यूब हुज नल स्पेस इज जनरेटेड बाय 1 2 3 4 and 0 1 1 and 1. सो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जिसका नल स्पेस जनरेट हो रहा है बाय द वेक्टर्स. ठीक है, अब ये नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस इज आपके पास जब भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होती है तो वी नीड बेसिस ऑफ यू. ऐसे ही हमने किया था, पीछे भी हमने स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू लिया था. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू लेके हम नहीं चल सकते, बिकॉज नल स्पेस इज गिवन टू यू एंड द वेक्टर्स आर गिवन टू यू जो नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं. तो नल स्पेस इसी का सब स्पेस है. ठीक है, दिस इज द नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ यू. सो ये आपके पास नल स्पेस है. तो अब आपको नल स्पेस, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं जो नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं. अगर आपके पास अब नल स्पेस इसका सब स्पेस है, इसका सबसेट भी है, तो अगर आपके पास नल स्पेस इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है और अगर ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम हम इन दो वेक्टर्स को किस पे एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू बेसिस ऑफ यू. तो जब आपके पास बेसिस ऑफ यू तक हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट अस नाउ फर्स्ट एक्सटेंड दिस null space, basis of null space to the basis of U. So let S be the set 1 2 3 4 and 0 1 1 and 1. So check these, this set is linearly independent set. So कैसे check करोगे, A times this vector, B times this vector is 0. So you have A as, this is A plus 2A plus B, 3A plus B, 4A plus B. Now comparing this with 0 comma 0 comma 0. So what will you get? You get A0, 2A plus B0 and 3A plus B as 0. ठीक है, यहाँ पे 4 times 0. सो आपके पास ये सारे 0 आ गए. सो A B क्या आ गया, 0. सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया. अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस U, दैट इज R4. तो इसकी बेसिस पे एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है R4 की स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1 0 E1 E2 E2 E1 E2 E3 E4. ठीक है, सो हम वहाँ से वेक्टर्स उठाने शुरू करेंगे. सो हमने लेट अस टेक 2 वेक्टर्स ले लिए. दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 E4. नाउ वी हैव टू चूज द 2 वेक्टर्स. कोई भी 2 वेक्टर्स हमने उठाने हैं. अब हम ये वेक्टर ले लें या ये वेक्टर ले लें या ये वेक्टर ले लें और ये वेक्टर ले लें, बट हम इस तरह से वेक्टर्स उठाएंगे. पहले हम इसके साथ ये वाला वेक्टर लेंगे, ये 2 ले लें और चेक कर रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनता है या नहीं बनता. अगर नहीं बनता, देन रिजेक्ट दीज 2 एंड टेक दीज 2. देन check whether this set is linearly independent or not, or you can simply write these in row echelon form. अब अगर मैं इस एक वेक्टर को लिखूँ 1 2 3 4, इसको लिखूँ 0 0 1 1 1, तो हमारे पास अगर मैं इस वेक्टर को लूँ तो इट इज़ 1 1 0 1 और इसको ले लूँ तो इट इज़ 0 0 0 1. सो यहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज़ इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म. तो हम कह देंगे कि दे विल फॉर्म द बेसिस. दीज आर द नॉन ज़ीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म विल फॉर्म द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस. सो दीज 2 एलिमेंट्स विल फॉर्म द बेसिस. सो आपके पास बेसिस आ गया. बेसिस क्या आया, 1 2 3 4 0 1 1 1 1 1 0 0 एंड 0 0 1. सो ये अब आपके पास बेसिस आ गई. ठीक है, अब बेसिस के बाद अब ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
प्रोसीजर वही सेम रहेगा, बेसिस आ गए तो x1 x2 x1 x2 x3 x4 हम ले लेंगे कोई भी एलिमेंट U से, वेक्टर स्पेस मीन्स R4 से, और फिर हम उसको लिखेंगे दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन, और फिर टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड वी विल गेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए कहाँ तक जाना था, वेक्टर स्पेस की बेसिस तक, यू की बेसिस तक, तो वो स्टेप थोड़ा डिफरेंट रहा. सो अब आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं ये नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ नल स्पेस. तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इन पे लगाएंगे तो ये कहाँ मैप होंगे, दे विल डेफिनेटली मैप टू ज़ीरो. जो नल स्पेस के एलिमेंट हैं वो कौन से होते हैं, ऑल दोज यू सच दैट टी ऑफ यू इज ज़ीरो. सो टी ऑफ 1 2 3 4 इज 0 0 0 एंड टी ऑफ 1 0 1 1 1 इज 0. ठीक है, सो ये 0 ऑफ वी पे मैप हो गए. नाउ अब आपके पास बचे दो वेक्टर 0 0 1 0 और 0 0 0 1. तो वो हमने कहाँ में मैप करवा लिए, दे आर मैप टू 1 1 1 0 0 एंड 0 1 0. सो दिस स्टेप इज डिफरेंट. अब ये जो हमने मैप करवाया ये किस पे करवाया, ये स्टैंडर्ड बेसिस है आपकी आर क्यूब की, वेक्टर स्पेस यहाँ पे जो आर क्यूब है ना आपके पास, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बेसिस उनका फर्स्ट एलिमेंट पे मैप करवाया और इसको उसके सेकेंड एलिमेंट पे, इसको E1 पे और इसको E2 पे. तो अब आपके पास सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हर एलिमेंट की. सो let us now write x1 x2 x3 x4 as linear combination of elements of its basis. So it is a times this, b times this, c times this and d times this. Now let us find this a, b, c and d first. So this is a, combine करेंगे a आ जाएगा, फिर 2a plus b और यहाँ पे 3a plus b plus c, यहाँ पे 4a plus b plus d. सो नाउ दिस a इज इक्वल टू x1, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स तभी इक्वल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. सो 2a प्लस बी इज इक्वल टू x2 एंड 3a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू x3 एंड 4a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू x4. सो लेट अस नाउ राइट द इक्वेशंस. सो a इज डायरेक्टली हमारे पास a की वैल्यू आ गई x1 के इक्वल. अब x2 यहाँ से आ जाएगा, b is equal to x2 minus 2a. 2a is x1, so it is x2 minus 2 x1. c की वैल्यू है क्या आ जाएगी, x3 minus 3a minus b. So this is x3 minus x1 minus x2. और d क्या आ जाएगा, d is x4 minus b minus 4a. So it is x4 minus 2x1 minus x2. So these are the values of a, b, c and d. So t of x1 x2 x3 is x1 times this, ट्रांसफॉर्मेशन ली थी हमने, a जो है वो स्केलर्स x1 x2 जो है वो फिक्स्ड हैं, स्केलर्स हैं. सो x इज आउटसाइड, सो इट इज़ t ऑफ 1 2 3 4 x2 minus 2 x1, दिस इज वैल्यू ऑफ b, t ऑफ 0 1 1 1 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ c, x3 minus x1 minus x2 into t of 0 0 1 0 and this is value of d, t 0 0 0 1. So what we get x1 as 0 0 0. इसकी वैल्यू क्या थी, because this belongs to null space, so it will map to 0. It is again 0 and it is 1 0 0 and this is 0 1 0. So after calculating, this is the transformation. So this is all about today's lecture. So thank you for watching the video. In our next video, we will discuss some more numerical based on rank and nullity. So thank you for watching the video.